Okay, in this video lecture we will start discussing Wheatstone bridge. Wheatstone's bridge. Basically we will discuss the balanced condition, so it is balanced Wheatstone bridge. Okay, अब Wheatstone बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सर्किट डिजाइन किया जिससे कि हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन यूज दिस सर्किट टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. सब दिस ही हैज डिजाइन्ड अ सर्किट इन सच अ वे. सपोज दिस इज द सर्किट and this is this cell. Suppose A, B, C, D. Here this is R1, R2, R3 and R4. And here galvanometer is connected. Okay. तो अब यहाँ पे हमको इनमें से कोई भी एक अननोन रहेगा तो हम इस सर्किट के मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. ही सॉ दैट इन बैलेंस्ड कंडीशन, जब ये बैलेंस्ड है तो ही यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड ही सॉ दैट देयर वाज सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन विच दिस VB becomes equals to VD and there was no current in this galvanometer. Okay, for certain combination of resistors this IG was 0. ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिवर्स में जाते हैं. हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि दिस VB इक्वल्स टू VD है, और तो क्या होगा R1, R2, R3, R4 का वैल्यू. ठीक है, इफ दिस VB इक्वल्स टू VD, we can clearly see that VA minus VB will be equals to VA minus VD, right? As VB equals to VD, so potential difference across this will be equals to potential difference across this. So this was, suppose I current was drawn from this cell at this junction. Suppose current is I1 and here it is I2. Okay, so it will be I1 into R1 and it will be I2 into R2. So यहाँ से क्या आ गया, I1 by I2 was to R2 by, sorry it was R4, 2 by R4. ये R4 by R1 होगा. ठीक है, I1 by I2 equals to R4 by R1. Suppose this is my equation 1. Okay, I1 by I2 equals to R4 by R1. Now as the current through this galvanometer is 0, so current through this will be I1 and current through this will be I2, as no current goes in this direction. Okay, so again I can write VD minus VC will be equal to VB minus VC, right? So VD minus VC is I2 into R3 and this is I1 into R2. ठीक है, so from here I can write R2 or I can write I1 by I2 will be R3 by R2. Suppose this is my question 2. So from 1 and 2 I can clearly see it can be written as R4 by R1 equals to R3 by R2. अगर इसको रीअरेंज करके लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं R1 by R2 equals to R4 by R3. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. इन दोनों का रेशियो, अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर है तो उनसे द करंट थ्रू दिस IG
ये करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर विल बी 0। अब गैल्वेनोमीटर के जगह पे यहाँ पे रेजिस्टर भी होता तो यहाँ पे करंट क्या होता, 0 होता। ठीक है, तो दिस इज माई बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन, वी कैन से if this condition is followed, we can say that Wheatstone bridge is balanced. So you can clearly see, you can use this to find out the unknown resistance. Suppose R4 is not given. You can use this data to find out R4. R4 can be written as R1 by R2 into R3. तो इस तरह से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के इस्तेमाल से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को पता कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि बाकी 3 रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस नोन होगा, एक अननोन होगा, तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, द पोजीशन of this galvanometer and this battery can be interchanged. Here I can interchange the position of this galvanometer and this battery. ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, let us take few examples of Wheatstone bridge. Suppose here it is given, this is 4 ohm, this is R, here this is galvanometer, this is 8 ohm and this is 16 ohm. What should be the value of R? It is asked what should be the value of R so that current through galvanometer is 0. ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 by R equals to 8 by 16 होना चाहिए। सो दिस R विल बी 8 ओम। अगर हम यहाँ पे 8 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो दिस IG विल बी 0। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब एक और तरह का एग्जांपल देखते हैं। सपोज it is given 2 ohm, it is given 4 ohm, it is given 16 ohm, again this is given 3 ohm and this is given 6 ohm. What will be the current through 16 ohm resistor? 16 ohm is asked. What will be the current through 16 ohm resistor? तो यहाँ पे फिर से देखेंगे ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, 2/4 हाफ रेशियो आ रहा है, तो दिस करंट विल बी 0। ठीक है, तो I16 ohm will be 0. Okay, let us take one more example. Here circuit is given, R and R. Okay, here RAB is asked, equivalent resistance across AB is asked. तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्टली देखने से समझ में नहीं आ रहा है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे।
Suppose I name this point as C and this point as D, है ना. ये अगर प्लेन वायर से कनेक्टेड रहता तो इस तरह का सर्किट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तब हम लोग को दिख रहा था आर 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 पैरेलल में, लेकिन ये प्लेन वायर नहीं है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है. तो हम यहाँ पे C और D, I cannot say potential of A will be equal to potential at D and potential of C will not be equal to potential at D because there is a resistance between these 2 points. ओके, तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. A और B को इस तरह से लिखते हैं. A के नजदीक है C, तो उसको इस तरह से लिखते हैं, और इधर D लिखते हैं. ठीक है, B के नजदीक है D. A से C के बीच में एक रेजिस्टर है R. ओके, A से D के बीच में एक रेजिस्टर है R. ये ठीक है. C से D के बीच में एक रेजिस्टर है R. C से B के बीच में एक रेजिस्टर है R. और D से B के बीच में एक और रेजिस्टर है R. तब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये, अब अगर यहाँ पे सेल कनेक्ट करेंगे, नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज अ कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना. ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है. तो इस R का होना बात बराबर है, इसके थ्रू करंट होगा 0. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB विल बी हाउ मच, R प्लस R, 2R और 2R पैरेलल में, तो इट विल बी R, है ना. ओके, R इक्विवेलेंट यहाँ पे आ जाएगा R, है ना. कैसा है वो, RAB इक्वल्स टू 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R. ठीक है, तो ये R आ जाएगा. ओके, होप इट इज क्लियर. ओके, एक और क्वेश्चन लेना है, आपको खुद से ट्राई करना है. सपोज दिस इज द सर्किट. ये सारे रेजिस्टेंस R हैं, R R R R एंड R. ठीक है, ये यहाँ पे AB, यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन विच यू शुड ट्राई योरसेल्फ. ओके ओके, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखते हैं, मेथड्स ऑफ सिमेट्री. मेथड्स ऑफ सिमेट्री. बेसिकली ये मेथड और ये टेक्निक हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम डायरेक्टली सर्किट को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्रेक नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे सिंप्लीफाइड सीरीज और पैरेलल फॉर्म में, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के फॉर्म में लाएंगे. ओके, तो ये मेथड कुछ ऐसा कहता है. इस मेथड में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे दैट इज पॉइंट सिमेट्री. पॉइंट सिमेट्री. अब पॉइंट सिमेट्री कहता है पॉइंट्स which are symmetrically located from the source and destination are asymmetric, located from the asymmetric points and asymmetric points having same potential. Hence the resistors between
those 2 points should be ignored. ठीक है. Points which are symmetrically located from the source and destination are symmetric points having same potential. Hence, the resistors between those 2 points should be ignored. ठीक है. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है. कि सिमेट्रिक पॉइंट, सबसे पहला सिमेट्रिक पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता चलेगा कि पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक है. सपोज ये एक क्यूब है, इसके सारे एजेस का रेजिस्टेंस, ये सारे ऑल दी एजेस आर ऑफ रेजिस्टेंस आर, सभी एजेस का रेजिस्टेंस आर है. तो देयर विल बी टोटल हाउ मेनी 12 एजेस, राइट. तो हर एक एज का रेजिस्टेंस आर है. तो इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच. आप इसको किसी भी तरह से नेम कर सकते हो. ठीक है. तो फर्स्ट पहला काम, सारे का रेजिस्टेंस आर है. ठीक है. इसका रेजिस्टेंस आर, ये आर, सब आर. ठीक है. ये ध्यान रखना. ओके. फर्स्ट थिंग, पहला काम करेंगे हम कि इनका रेजिस्टिव कोऑर्डिनेट लिखेंगे. रेजिस्टिव कोऑर्डिनेट मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन से रेजिस्टिव डिस्टेंस लिखते हैं, और उसके लिए हम लोग उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं. शॉर्टेस्ट पाथ में जाके उसका रेजिस्टिव कोऑर्डिनेट लिखते हैं. एग्जाम्पल से क्लियर होगा. दिस इज माई सोर्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन. ठीक है. नाउ हियर इट इज आस्क्ड टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी. अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एडी निकालना है. ठीक है. तो ये मेरा सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया. तो अब हर एक पॉइंट का हम सोर्स के रिस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट में दो कंपोनेंट होंगे. एक सोर्स से डिस्टेंस और दूसरा कंपोनेंट होगा डेस्टिनेशन से डिस्टेंस. और जब डिस्टेंस लिख रहे हैं तो हम लोग रेजिस्टिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे. सो ए से बी में जाने के लिए एक ही रेजिस्टेंस, एक ही सबसे शॉर्टेस्ट बात यही है. सो आर ये सोर्स से, और डेस्टिनेशन से इसका डिस्टेंस 2r. ठीक है. r कॉमा 2r ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, रेजिस्टिव कोऑर्डिनेट कह सकते हैं. C की अगर बात करें तो C इज एट अ डिस्टेंस 2r. सबसे शॉर्टेस्ट वही, आप चेक कर लो, 2r, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द डेस्टिनेशन. C का लिख लिए. सारे पॉइंट्स का लिखेंगे, सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन को छोड़ के सारे पॉइंट्स का लिखेंगे. ओके. E का, E इज r एंड इट इज एट डिस्टेंस 2r, है ना. सोर्स और डेस्टिनेशन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं. H का क्या होगा? H is at a distance R and it is at a distance, source 2r distance from the source and it is at a distance R from the destination. ध्यान ये रखना है कि हमेशा सोर्स और डेस्टिनेशन, पहले सोर्स फिर डेस्टिनेशन. ठीक है. सब में सेम लिखेंगे. ऐसा नहीं कि एक में पहले डेस्टिनेशन से लिख दिए दूसरा सोर्स से लिख दिया, फिर एरर हो जाएगा. यही कन्वेंशन इस्तेमाल करना है, सोर्स डेस्टिनेशन. ठीक है. ओके. एफ का अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो इट इज एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सोर्स एंड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द डेस्टिनेशन. r एंड r यही शॉर्टेस्ट है. ओके. जी की अगर बात करें, जी कितने डिस्टेंस पे है, शॉर्टेस्ट अगर ले तो सोर्स से ये आ जाएगा 3r और डेस्टिनेशन से आ जाएगा 2r. तो अब मैंने सारे पॉइंट्स का रेजिस्टिव कोऑर्डिनेट लिख लिया है. ठीक है. जैसा कि आप देख सकते हो, है ना. नाउ आई हैव टू चेक द पॉइंट्स हैविंग सेम कोऑर्डिनेट विल बी इक्विपोटेंशियल पॉइंट. दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ दोज पॉइंट्स विल बी सेम. हियर आई कैन क्लियरली सी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B and coordinate of point E is same.
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज सेम। सी का 2r, एच का भी 2r। सी और एच इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट सी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट एच। और बी का कोऑर्डिनेट r, 2r, ई का कोऑर्डिनेट r, 3r। पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ई। और कोई पॉइंट्स हैं क्या, चेक कर लेते हैं। 2r, 3r, 3r, 2r नहीं है। और कोई पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, कोऑर्डिनेट सेम दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करके कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारा टेक्निक कहता था कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टर्स होंगे उसको रिमूव करना है, इग्नोर करना है या रिमूव करना है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स के बीच में ई और बी के बीच में कोई रेजिस्टर है नहीं, और सी और एच के बीच में भी कोई रेजिस्टर है नहीं है। तो इसको यहाँ पे रिमूव क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए तो कुछ है नहीं। ठीक है, अगर होता तो उसको रिमूव करते। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे RAD। ठीक है, सबसे पहला काम हम करेंगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। कैसे रीड्रॉ करेंगे, आई नो दीज 2 पॉइंट्स आर हैविंग सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक साथ रखेंगे और अलग अलग पॉइंट्स को, डिफरेंट पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को अलग अलग लिखेंगे। तो यहां पे AD के अक्रॉस निकालना है। तो AD के अक्रॉस सबसे पहला AD AD ऐसे लिख लिए। ओके, अब B और E का पोटेंशियल सेम है। B और E A से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और B और E को हमको एक साथ लिखना है क्योंकि दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, लिखते समय ये ध्यान रखना है कि जो जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके नजदीक लिखना है। ओके, पॉइंट डी H और C D से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम इसको इसके नजदीक लिख लेते हैं, H और C। ऐसा नहीं कि अब इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है लिखते समय। ठीक है, नाउ अब बच गया 4 पॉइंट्स तो आ गए। ठीक है, अब बच गए बाकी बेसिकली 6 पॉइंट्स आ गए, बच गए 2 पॉइंट्स F और G। F आप देख सकते हो B और E से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहां पे लिख देते हैं। H और G जो है H और C से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसे यहां लिख देते हैं। ठीक है, नाउ A और D के बीच में एक रेजिस्टर। ठीक है, A और B के बीच में एक रेजिस्टर। A और B के बीच में, A और B के बीच में एक रेजिस्टर R, सिर्फ प्लेन वायर से दिखाते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R है। B A और E के बीच में एक और रेजिस्टेंस R। ठीक है, A से और कोई कनेक्शंस नहीं है, खत्म हो गया काम। अब आ जाते हैं D पे। D से देख लेते हैं, D से C के बीच में एक रेजिस्टर, D से H के बीच में एक रेजिस्टर, और D से A से D हो गया है तो D से A तो हो ही गया होगा, है ना। ओके, अब आते हैं B से A, सोचने का नहीं है, पीछे नहीं जाना है। ठीक है, अब B से C एक रेजिस्टेंस, B से F एक रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा इसमें है E से A तो हो ही गया होगा, E से F एक रेजिस्टेंस, और E से H भी एक रेजिस्टर है। ओके, अब आते हैं H पे। H से D हो गया होगा, H से E ये भी हो गया होगा, H से G एक रेजिस्टर है। ठीक है, अब हम बात करें C की। C से G एक रेजिस्टेंस है, C से B हो गया होगा, C से D हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रीड्रॉन सर्किट। अब आते हैं F पे एक बार। F से E कनेक्टेड हो गया होगा, F से B भी हो गया होगा, F से G एक रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ABCD हम जानते हैं,
तो पीछे वाले के बारे में नहीं सोचना है। एफ पे जब हम पहुंचे तो एफ से बी कनेक्शन हो चुका होगा क्योंकि हम लोगों ने बी से पहले निपटा था। ओके, तो ये हो गया मेरा रीड्रॉन सर्किट। अब आपको ये थोड़ा सिंपल दिख रहा होगा सर्किट। तो यहां पे देख सकते हैं अब क्या होगा। दिस आर एंड आर इज इन पैरेलल, दिस आर एंड आर इज इन पैरेलल, दिस आर एंड आर इज इन पैरेलल, दिस इज इन पैरेलल एंड दिस इज इन पैरेलल। तो अगर हम फिर से इसको रीड्रॉ करें तो ये आ गया r/2, this r/2 and this is r/2 and this is r/2 and this is also r/2 and this is r। ठीक है, AD। ठीक है, ये इस तरह से। अब आप क्लियरली देख सकते हो क्या, ये तीनों किस में, सीरीज में। तो ये कितना हो गया, r/2 r/2 2r, 2r और r/2, 2r और r/2 पैरेलल में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2r एंड r/2, 2r इंटू r/2 एंड तो ये हो जाएगा 2r इंटू r/2, ये पैरेलल वाली की बात कर रहे हैं, 2r प्लस r/2। तो ये आ जाएगा यहां से r 2r/5। ठीक है, 2r/5, 2r/5। अब इसको रीड्रॉ करें सर्किट को तो क्या आ जाएगा, r/2, 2r/5 एंड r/2। ठीक है, और ये r, ये है AD, नहीं है ना। तो अब यहां पे ये सीरीज में है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस 2r/5 मतलब 7r/5। ठीक है, 7r/5 और r, तो ये आ जाएगा RAD 7r/5, 7r/5 इंटू r बाई 7r/5 प्लस r। तो ये आ जाएगा 7r/11। यही है RAD। क्लियर है, सॉरी ये 12 होगा ना सर, 7 प्लस 5 12। ठीक है, 7r/12। होप इट इज क्लियर। एक बार टेक्निक को फिर से ये करते हैं। स्टेप्स क्या होगा, सबसे पहला स्टेप सोर्स और डेस्टिनेशन के रेस्पेक्ट में सबका रेजिस्टिव कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सारा r था तो ये r, ये यहां से यहां पहुंचने में r प्लस r 2r। तो ऐसे करके सारा का लिख देंगे। जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, दोज आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, यानी कि जब सर्किट रीड्रॉ कर रहे हैं तो पॉइंट्स को एक साथ लिखना है। ठीक है, लिख लिए, उसके बाद रीड्रॉ करेंगे। सर्किट जब रीड्रॉ कर रहे हैं और पॉइंट जब लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो पॉइंट जिस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसके नजदीक लिखना है। ठीक है, वरना जो हम रीड्रॉन सर्किट होगा वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टेक्निक को हम लोग फॉलो करेंगे। यूजिंग द सेम टेक्निक यू हैव टू ट्राई फाइंडिंग RAC AC के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड RAG। ठीक है, A और G के बीच में ये डायगोनल्स है, ये बॉडी डायगोनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेम सर्किट, सारे रेजिस्टेंस R। अब फिर से यही टेक्निक अपनाना है आपको, है ना। फिर से आपको ये सर्किट रीड्रॉ करना होगा, फिर से कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा क्योंकि अब सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज हो गया। सबका कोऑर्डिनेट्स लिखना होगा दोनों केसेस के लिए, और सेम टेक्निक यूज करके आपको सॉल्व करना है और खुद से ट्राई करना है इसको। ओके ओके, इन सिमेट्री let us learn one more technique, line symmetry. Okay, line symmetry, it says if points
A and B are connected to a battery and AB is a line of symmetry, then the points lying on the perpendicular of AB are at the same potential. Hence the resistors between those points can be ignored. ठीक है, hence the resistors between those points can be ignored. ओके, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. सपोज एक सर्किट है जैसे R2R, ये R, ये 2R, ये R, ये R, ये 2R, ये 2R और ये 2R. ठीक है, you have to find equivalent resistance between PQ. R PQ निकालना है. ओके, ये एक एग्जांपल. ओके, if I join these 2 points, P और Q 2 पॉइंट है जो सेल से ज्वाइन होंगे. तो इसको अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यू कैन सी दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. कैसे? आप इस लाइन के अबाउट इस सर्किट को फोल्ड कर सकते हो. सिमेट्री क्या होता है? जब हम कह सकते हैं हमारा हैंड क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, कॉन्साइड हो जा रहा है. तो ये इस सर्किट के ऊपर का जो सर्किट, इस लाइन के अबव जो सर्किट है वो बिल्कुल सेम है. ये सॉरी ये आर है और ये भी आर होगा, या इसको ये 2R है तो ये भी 2R है. ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, सेम है ना. मतलब इस लाइन के अबाउट फोल्ड करेंगे तो ये क्या सेम पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाएगा, है ना. अगर ये डिफरेंट होता है, ये R होता है, ये 2R होता है, तो दिस इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, यू कैन सी दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. क्लियर है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इस लाइन के अबव का सर्किट और इस लाइन के बिलो का सर्किट एग्जैक्टली सिमिलर है. ठीक है, इस लाइन के अबाउट फोल्ड करेंगे तो ये पूरी तरह से, मतलब इस लाइन के अबाउट, लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट हम लोग सर्किट को फोल्ड भी कर सकते हैं. ओके, और ये पूरी तरह से कोइंसाइड करेगा. ठीक है, अगर ये R हो जाता और ये 2R है तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता फिर. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है. ओके, नाउ तो यहां पे देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो कहता है पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ AB. अगर यहाँ पे PQ इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स लाइंग परपेंडिकुलर ऑफ दिस PQ. PQ पे के परपेंडिकुलर जो पॉइंट्स लाई करेंगे, दोज पॉइंट्स विल हैव सेम पोटेंशियल. सपोज इसको A कह दे, इसको B कह दे और इसको C कह दे, तो ये पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट C. ठीक है, इन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी कि इन रेजिस्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं. 2R और 2R गया, इसको रिमूव कर सकते हैं. तो अब हम रीड्रॉ अगर करें सर्किट को, तो ये 2R किस में हो गया, सीरीज में. तो ये 4R आ गया और ये R और ये R सीरीज में, ये 2R आ गया और ये 2R ये 4R आ गया. ठीक है, PQ के अक्रॉस. ठीक है, सो RPQ क्या हो गया, ये 4R ये हो गया 2R, RPQ हो गया R. क्लियर है लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट.
ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरे मेथड में मैंने क्या कहा कि हम लोग इस लाइन के अबाउट फोल्ड भी कर सकते हैं ना। मेथड 2, इस सिमेट्रिक लाइन सिमेट्रिक के अबाउट हम लोग क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं। तो फोल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ रही, ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ जाएगा और ये पॉइंट से जुड़ जाएगा। इसको पूरा फोल्ड करके इसको ऊपर रख देंगे तो ये क्या हो गया, 2r और 2r किस में आ गया, पैरेलल में। तो ये क्या आ जाएगा, r, है ना। ये 2r और ये 2r पैरेलल में, तो उसके वजह से r, ये r तो एज इट इज रहेगा। ये 2r और ये 2r पैरेलल में क्या आ जाएगा, तो ये 2r और ये 2r पैरेलल में, तो उसके वजह से आ जाएगा r, और ये r तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये है PQ। अब क्या दिख रहा है कि एक ऐसा सर्किट हो गया, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, ये R, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका होना ना होना बात बराबर। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये गया, तो ये हो गया 2R और 2R पैरेलल में, तो RPQ हो गया R। क्लियर है। तो ये दोनों मेथड्स है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट आप फोल्ड करके भी कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस तरह का सर्किट है, यू हैव टू फाइंड RAB एंड ऑल द रेजिस्टर्स आर R, सब R है। ठीक है, तो अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि A और B को अगर ज्वाइन करें, यू कैन सी क्लियरली A एंड B इज द लाइन ऑफ सिमेट्री हियर, है ना। A और B को ज्वाइन करेंगे तो इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम इस सर्किट को इस लाइन के अबाउट फोल्ड कर सकते हैं, उस टेक्निक से भी आप बना सकते हो, या दूसरा मेथड जो कि ये कहता है कि पॉइंट्स लाइंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी एट सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट्स की अगर बात करें, ओके, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके दोनों तरफ इसके परपेंडिकुलर पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे, दोज पॉइंट्स विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पे देख सकते हो उन पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर तो नहीं है, तो रिमूव करने के लिए कुछ है नहीं। सिंपली हम सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। सपोज इसको CDEFG नेम कर दिए, तो आई कैन से पोटेंशियल ऑफ C इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ F, पोटेंशियल एट D इक्वल्स टू पोटेंशियल एट, suppose this is O and this is G, potential at G and potential at E equals to potential G नहीं, इसको P बोल देते हैं, P, so potential at E will equals to potential at G। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें हम सजेस्ट करेंगे कि सिंपल है, सबसे पहले या तो सर्किट आप रीड्रॉ कर लो, इन पॉइंट्स को सेम लिख के, आपको पता है कि ये पॉइंट्स इक्वल हो गए तो इनको एक साथ एक बंडल में रखना है, और फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लो। या दूसरा टेक्निक जो कि हम कह रहे हैं कि इसके अबाउट फोल्ड कर दो सर्किट को, तो E और F कॉन्साइड करेगा, E और D कॉन्साइड कर जाएगा, E और G कॉन्साइड कर जाएगा। तो आप देख रहे हो E और F को जब कॉन्साइड कर देंगे, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर डाल देंगे, तो A और C और A और F के बीच में जो रजिस्टर है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, और ये दोनों भी किसमें, पैरेलल में। तो हम इसको अगर रीड्रॉ करें फोल्डिंग वाले टेक्निक से, तो ये सारा रजिस्टर जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। ये R/2, ये भी R/2, क्योंकि सबके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा R/2, ये भी हो जाएगा R/2, सारा R/2। इसको रीड्रॉ करें तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2, ये भी 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 हो जाएगा R/2। ठीक है, ये है A B, यही है ना। कोई दिक्कत, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके
इसको अगर कोइंसाइड करा दिए तो क्या हो गया, ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, ये क्या इसके साथ तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, सब हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा था। या गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी है, 7 इधर भी होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर भी और 6 इधर भी, 2 4 6। ठीक है, दोनों तरफ 6 6 है तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब बहुत सिंपल सा सर्किट बन गया। दिस R/2 एंड R/2 इज इन सीरीज एंड दिस R/2 एंड R/2 इज इन सीरीज। तो R एंड R इज इन पैरेलल, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट R/2। सो दिस R/2 एंड दिस R/2 एंड दिस R/2 आर इन सीरीज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये R/2 सीरीज में, ये R/2 सीरीज में। तो R पैरेलल में तो R/2 आएगा, ये R/2 था, ये R/2 था, तो ये RAB सिंपली 3R/2 लिख सकते हैं। यही होगा आंसर, है ना। रिमेम्बर इसमें मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड 2 फिर से वही रीड्रॉ करना है, A और B के बीच में लिखना है। तो हम A और B को इस तरह से लिख दिए, है ना, A और B को लिख दिए। अब A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है, A डायरेक्टली कनेक्टेड है C और F से, और C और F का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, CF का पोटेंशियल सेम है। फिर CF डायरेक्टली कनेक्टेड है DOP से, तो DOP का पोटेंशियल जो है वो सेम है, तो तीनों एक साथ रखेंगे। और फिर E और G B से कनेक्टेड है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स को लिख दिए। अब आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दो इन पॉइंट्स के बीच में, एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। तो ये मेरा मेथड 2। ठीक है, ये मेथड ज्यादा सिंपलर है, फास्टर है इनफैक्ट। ये एक सर्किट है, हियर यू हैव टू फाइंड RAB। इस सर्किट में आपको खुद से ट्राई करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकालना है। ठीक है, सिमेट्री वाला टेक्निक लगा सकते हो, लाइन सिमेट्री या पॉइंट सिमेट्री, दोनों से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सभी रेजिस्टेंस इसमें R है ना, ऑल रेजिस्टेंस आर ऑफ रेजिस्टेंस R। ओके, थैंक यू।